जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। Hello everyone, I am Tanmit Tripathi. I am welcoming you all to Pahuja Law Academy. Today we are going to discuss Jharkhand APO paper which was held recently in 2025. The main purpose of discussion on this paper is to let you know what are the correct probable answers so that you can file an objections if you have any of the doubt in any of the answers. तो शुरू करते हैं हम. This is a law paper discussion which will comprise of 100 questions. So I am going to start with it. So there are series. So this is one of the series from where the question is being started from the CRPC. CRPC से क्वेश्चन शुरू हो रहा है. CRPC, कॉन्स्टिट्यूशन, IPC और आपका कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC जिसको हम CRPC कहते हैं वो. तो मेजर लॉस तो नहीं थे इसमें, बट इसमें जो भी आपके पुराने लॉस थे मेजर वो है क्रिमिनल. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इस पेपर को डिस्कस करना. Who shall be appointed in every district one or more assistant public prosecutor for conducting prosecution? तो assistant public prosecutor district में कौन अपॉइंट कर सकता है? तो the correct answer here will be A, that is state government. Next question. Question number 2 देख लीजिए. In which section of the criminal procedure code the provision regarding security for keeping peace on conviction? Security for keeping peace on conviction is basically mentioned under section 106. So the correct answer will be A here. The correct code will be A, that is 106 of the CRPC. Next question. Which section of the CRPC the word police report is defined? तो police report अगर आप देखोगे CRPC में तो 2R में defined है. So again A is the correct answer here for question number 3. A is the correct answer. प्लीज इसको सुन लीजिएगा और वही आंसर आप अपने चेक करके अपने क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लें. अगर आपने सही किया है तो वेल एंड गुड, अगर कुछ गलत लगता है तो आप करेक्ट आंसर यहां से देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन प्रोवाइड्स प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस अंडर CRPC? So the correct answer will be section 197. Section 197 of the CRPC is talking about the prosecution of the judges. C is the correct answer in question number 4. Question number 5. Which section of the CRPC provides for the confirmation of the High Court by the High Court of an order of death sentence passed by the Session Court? तो Session Court अगर death sentence पास करता है तो उसका confirmation High Court करता है. ये किस सेक्शन में दिया है? तो इसका सही आंसर होगा A, that is section 366. This section provides this particular rule और वो जो ऑर्डर देता है वो 368 में होता है. तो जो क्वेश्चन का तरीका है पूछने का उस हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा A, that is section 366 of the CRPC. Question number 6. In which of the following cases Supreme Court said that even a telephonic message which discloses a cognizable offense may constitute a FIR? तो इसमें जो लैंडमार्क केस है हमारा as far as the cryptic information is concerned और नॉन cryptic information is concerned, इस पे हमारा सोमा वाला केस है. तो सोमा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात वाला जो केस है वो इंपॉर्टेंट केस है जो इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता है. दिस इज 1975 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग. So the correct answer will be Soma Bhai versus State of Gujarat. Question number 7. In which case the Supreme Court held that not all live-in relationship will amount to relationship in nature of a marriage? तो इस पे लैंडमार्क केस है, रिसेंट का केस है, तो आप प्लीज इसको देख लीजिएगा. डी वेलुसामी वर्सेस डी पतचमाइला. ठीक है, तो डी वेलुसामी वर्सेस डी पतचमाल. ठीक है, पतचमाल. See the pronunciation. So the correct answer will be A. उसके अलावा which section of the CRPC is related to no unnecessary restraint? तो अरेस्ट वाला जो चैप्टर है वहां पे no unnecessary restraint की बात की गई है and the correct answer will be section 49. So that D will be the correct answer in question number 8. Question number 9. एक चीज आप जरूर नोटिस करिएगा कि यहाँ पे जितने भी आपके सेक्शंस आए हैं, टॉपिक्स आए हैं, CRPC, IPC, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन केसेस आए हैं. देयर आर नंबर ऑफ केसेस बीइंग आस्क्ड. आई थिंक मोर देन 20 केसेस आर बीइंग आस्क्ड ऑल ओवर आउट ऑफ दिस 100 क्वेश्चंस. तो केसेस पे कमांड जिसका ज्यादा है तो उसकी कटिंग एज या उसका प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा है निकालने का पेपर को. इन विच केस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द कोर्ट हैज डिस्क्रिशन टू रिजेक्ट अ प्ली टू कंपाउंड एन ऑफेंस हैविंग अ सोशल इंपैक्ट even if the offense is
कंपाउंडेबल अंडर दी 320 ऑफ दी सीआरपीसी। तो कंपाउंडिंग पे जो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है कि कंपाउंडिंग अलाउड है, बट स्टिल इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू कंपाउंड और नॉट टू कंपाउंड। तो ऐसी जो सिचुएशन डिस्कस हुई थी दैट वाज भाग्यवान दास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 is talking about the match the column. So list 1 and list 2 there are two lists और इसमें देखना है हमें कि करेक्ट आंसर क्या है, कौन सी लिस्ट किससे मैच कर रही है। So the column is talking about, सबसे पहला है हमारा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस कृष्णन। So this was basically talking about the inherent power. So करेक्ट आंसर 482 जो आपका inherent power है सीआरपीसी में उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। So the correct option will be 1 मयकाला धर्मारगम। This is basically regarding the cancellation of bail. Union of India versus Padam Narayan. Union of India versus Padam Narayan. This case was basically regarding the anticipatory bail, and Anokhi Lal versus State of MP trials related था. This is also one of the landmark case. So the correct answer will be A here. A का 1, B का 2, C का 3rd and D का 4th option is the correct. So A is the correct answer. According to section 468 CRPC, no court shall take cognizance of an offence punishable with imprisonment for a term not exceeding 1 year. तो इसका करेक्ट आंसर होगा आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल के अंदर अगर कोई भी, ये सेक्शन 468 में दिया है स्ट्रेट अवे सीआरपीसी के, कि अगर 1 साल के अंदर कोई भी ऑफेंस है जिसकी सजा विद इन 1 ईयर है तो उसका पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है, 1 ईयर। So the correct answer will be A of question number 11. Question number 12 देख लीजिए, which section of the criminal procedure code is based on the principle of res judicata? So res judicata is a concept which we have seen in code of civil procedure. तो उसी तरह res judicata एक डॉक्ट्रिन है, एक प्रिंसिपल है जो आपको क्रिमिनल लॉ में मिलेगा, and in the light of that you will find section 300 of the CRPC which is talking about autrefois convict and autrefois acquit, कि no person shall be tried again by the same court for the same offense। तो वो कॉन्सेप्ट जो है सेक्शन 300 ऑफ द सीआरपीसी में दिया है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following section of the CRPC provision for free legal aid is mentioned? So 304 is the correct answer. Section 304, that is C, is the correct answer, is talking about the free legal aid provision. 14 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Which provision under the Code of Criminal Procedure prescribes the mode of execution of a sentence of death that the convict be hanged by neck until he be dead? तो ये कहां पे लिखा है? तो सीआरपीसी में जब आप देखोगे फॉर्म नंबर 42 के सेकंड शेड्यूल में ये बात कही गई है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हियर। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या है? बी है, प्लीज मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सीआरपीसी अंडर फर्स्ट शेड्यूल। ये यहां पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 में। When did the Code of Criminal Procedure came into force? तो एक क्वेश्चन यहां से वो पूछ लेते हैं हर स्टेट में। आप देखोगे किसी जुडिशियरी एग्जाम में या एपीओ एग्जाम में जितने भी हमारे लॉ सब्जेक्ट्स हैं, तो डेट ऑफ एनफोर्समेंट कहीं ना कहीं एक बार एक क्वेश्चन तो आ जाता है। तो सीआरपीसी का जो डेट ऑफ एनफोर्समेंट है वो है 1 अप्रैल 1973। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हियर। क्वेश्चन नंबर 17, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको थोड़ा बहुत अगर बैकग्राउंड का नॉलेज है, हिस्टोरिकल नॉलेज है एज फार एज दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज कंसर्न, तो ये आंसर दिया जा सकता है। तो सेक्शन 17 क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज 41st रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी वर्ड डॉक्यूमेंट कहां पे डिफाइंड है? सो डॉक्यूमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 29। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। 19th क्वेश्चन, हु हैज टेकन द व्यू that doctrine of mens rea under IPC is wholly out of place? ये किसका कहना था? So the correct answer will be JD Main. Correct answer will be A, that is JD Main. Now coming on to question number 20. In which case the Supreme Court said that 438, that is basically talking about the anticipatory bail, cannot be considered to be the integral part of the Indian Constitution? आर्टिकल 21 का इंटीग्रल पार्ट नहीं माना जा सकता है द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसिमेट्री बेल। ऐसा किस केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सो द करेक्ट आंसर विल बी हियर, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ऐसा सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कहा गया था। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। Which one of the following section of the Criminal Procedure Code provides that no judges or magistrates shall try any case in which he is personally interested? सो ये प्रोविजन आपका 479 में दिया है सीआरपीसी के,
डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस आए हैं, केस लॉ बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस आए हैं. केस लॉज आर, देयर आर few cases which are of a moderate level, but few are which can be easily understood or which can be easily seen while we are going to the content. तो जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं मटेरियल के थ्रू, we come across many of the cases. Question number 22. In which of the following case the Supreme Court held that the registration of FIR and arrest of the accused person are two different things? Secondly, it is not correct to say that merely because FIR is registered, the accused can be arrested. ऐसा किसमें कहा गया था? तो as far as arrest is concerned, we have few of the landmark cases like Lalita Kumari, Joginder Kumar, Anesh Kumar. So these are the landmark judgment. तो अब इसमें जो correct answer होगा वो हमारा होगा Joginder Kumar versus State of UP. So in question number 22, A is the correct answer. Question number 23 देखते हैं. The offence punishable with imprisonment for a term exceeding 2 years is basically related to warrant cases. So the correct answer will be B here. Question number 24. Who is given protection from arrest under section 45 of the Code of Criminal Procedure? So it is the member of armed force. B is the correct answer. Member of armed force are given the protection from the arrest. Sanction लेने की जरूरत पड़ती है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की. Question number 25. Provisions regarding person arrested to be informed of the ground of arrest. तो आप किस ग्राउंड पर अरेस्ट हो रहे हैं. सेकेंडली आपका राइट टू बेल है कि नहीं, ये बात इन्फॉर्म करनी चाहिए पुलिस ऑफिसर को. ऐसा प्रोविजन सेक्शन 50 में है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हियर. क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर जो है वो ए है. प्लीज मार्क कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं. Which one of the following section of the Code of Criminal Procedure provides that appointment of the special executive magistrate by the state government? CRPC का डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन 21 से. So section 21 is basically talking about the appointment of special executive magistrate. D is the correct answer. Match the column again. Question is regarding the cognizance of an offence by the magistrate. Cognizance of offence by the magistrate is basically given under section 190. So 2 is the correct option of A. 2 is the query. Conviction on plea of guilt is basically discussed under section 229 of the CRPC. Content of charge is 211. The reference to High Court is 395. So the correct answer will be A here. A correct option होगा हमारा. Question number 27 में A is the correct answer. Again the case law based question. In which one of the following case the Supreme Court held that the civil judge cannot be invested with the power of additional session judge unless he is being appointed as a additional session judge under section 9 of the criminal procedure code. ये कहाँ कहा गया था, किस केस में कहा गया था? So the correct answer will be Premnath versus State of Rajasthan. A is the correct answer in question number 28. Question number 29 देख लीजिए. Which of the following courts can summarily try offence mentioned in section 260 of the Code of Criminal Procedure? तो सेक्शन 260 जब आप विजिट करोगे तो आप देखोगे कि सीजीएम को भी पावर है, एमएम को भी पावर है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को अगर एम्पावर करता है हाई कोर्ट तो ये तीनों ही केस को समरली ट्राई कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. 30th पे आते हैं. Which of the following has the power to transfer case and appeal under section 407? तो 407 में specifically this is the power of the High Court to transfer cases and appeal. So the correct answer will be A. Question number 31. In which section of the CRPC provision regarding the recalling of a witness when charge altered has been mentioned? तो जब चार्ज अल्टरेशन होता है तो उस समय कौन सा सेक्शन बात करता है कि विटनेस को रिकॉल किया जा सकता है? सो दैट इज बेसिकली सेक्शन 217 व्हिच इज टॉकिंग अबाउट दिस. अल्टरेशन 216, 15 में प्रोविजन दिए हैं और 217 इज टॉकिंग अबाउट द रिकॉलिंग ऑफ द विटनेसेस. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर. अगेन द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द मैच द कॉलम. डाउरी दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 304B. तो ये नहीं हो सकता. आइडेंटिटी इज गिवन अंडर, अब तो नहीं है, फिर भी 497 ऑफ द आईपीसी में है था. उसके अलावा किडनैपिंग 359 में है, एब्डक्शन 362 में है. सो वी कैन फाइंड दैट 2, 3 and 4 आर द करेक्ट ऑप्शंस, करेक्टली मैच्ड. सो डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. 2, 3 and 4 डी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 33. A police officer tortured
Tortures B to induce him to point out whether certain stolen property is deposited. A is guilty of offense. तो पुलिस ऑफिसर को ने क्या क्राइम किया है कि वो टॉर्चर कर रहा है और कोई प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है. So here the answer will be 330. Section 330 of the IPC is basically talking about the offense regarding the confession. आप confession लेते हो मारपीट के इस तरीके से जो पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट या पुलिस ऑफिसर जब ऐसा कोई क्राइम करती है. So it is mentioned under section 330 of the IPC. So D will be the correct answer. उसके बाद ये पेज हमारा रिपीट हो गया है, इसको मैं एक बार और आगे कर देता हूं. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं. A voluntary burning, A voluntary burns a valuable security belonging to Z. A voluntary burns a valuable security belonging to Z. Intending to cause wrongful loss to Z, A has committed mischief under which of the following provisions of the IPC. तो mischief जो है यहाँ पे 425 में है, so D will be the correct answer. Mischief 425 में D will be the correct answer of section of question number 34. 35 पे आते हैं. Punishment regarding obscene act and song is contained in which of the following provision of the IPC. तो अभद्र गाने गाना, सीन या एक्ट करना इन एट पब्लिक प्लेस स्पेशली, ये जो है आपका सेक्शन 294 में ऑफेंस है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हियर, 294 ऑफ द आईपीसी. 303 सेक्शन 303 आपका आईपीसी का उससे रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है और इससे रिगार्डिंग कई क्वेश्चन आए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं रिगार्डिंग 303. तो इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार बैराक में. सेक्शन 303 ऑफ द इंडियन पीनल कोड was declared unconstitutional by the Supreme Court of India. क्योंकि कौन से आर्टिकल को वायलेट कर रहा है? So the correct answer will be Article 14 is being violated, that is right to equality and right to life and personal liberty, that is Article 21 is being violated. So the correct answer will be D here. Question number 37 again ये illustration based question है और आपको बैराक में straight अभी ये question मिल जाएगा. D है illustration based question. A lays stakes and turfs over a pit with the intention thereby causing D. Z leaves the ground to be firm, treads on it, falls in and is killed. A is guilty of. So the correct answer will be culpable homicide. Question number 37 का जो correct answer है वो culpable homicide है, not amounting to murder. Section 300 में देख लीजिएगा ये illustration mention भी है वहां पे. A is the correct answer. 38 देख लेते हैं. The case by which the word in furtherance of common intention of all. So section 34 में आप देखोगे in furtherance of common intention of all जो है वो बाद में ऐड हुआ है by the amendment. तो ये किस केस के थ्रू ऐड हुआ है? in 1870. So the case will be Ganesh Singh versus Ram Raja. The right case will be A, that is Ganesh Singh versus Ram Raja. A is the correct answer. Question number 39 में आते हैं. Which of the following section of the IPC defines good faith? So it will be section 52 which defines good faith. 52 एक बार देख लीजिएगा. सेक्शन good faith की बात करता है, डिफाइन करता है. A is the correct answer. Voyeurism is defined under which section of the IPC? So voyeurism is like watching someone at their private places. तो ये आपका 354 कैपिटल C में है ऑफेंस, 354 कैपिटल C में. So C will be the correct answer. अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए थे ये प्रोविजंस. 41 देख लीजिए एक बार. क्वेश्चन नंबर which one of the following defines that crime is an act which is both forbidden by law and revolting to the moral sentiments of the society. तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट कहा गया, ये जो सेइंग है, ये किसकी है? ये है सर जेम्स स्टीफेंस जिन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 42. In which of the section of the IPC punishment for murder by life convict is given? So again ये आपका section 303 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन भी हमने देखा था आर्टिकल 21 से के रिलेट करके आया था 303 पे. अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग 303 ऑफ द आईपीसी. तो इस टॉपिक से देखिए दूसरा क्वेश्चन आया है. ये ए इसका करेक्ट आंसर है. 43 देखिए. In which of the following case the Supreme Court held that the common intention can be developed on the spot? तो सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट डेवलप हो सकती है. ऐसा किस केस में कहा गया था? तो बाकी केसेस आर ऑल दीज केसेस आर रिलेटेड टू सेक्शन 34 बट ये स्पेसिफिकली इशू जो है डिस्कस हुआ था ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाले केस में. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43. 44 देख लीजिए.
क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहां पे डिफाइंड है? सो इट इज सेक्शन 503 इज द सेक्शन वेयर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, डराना धमकाना, डिफाइंड है। 45 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 45 is talking about an attempt to pick the pocket of Z by thrusting his hand into Z's pocket. A fails in his attempt as Z has nothing in his pocket. तो क्या है ये? मिस्चिफ है, थेफ्ट है, अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट है, या कोई ऑफेंस नहीं है? तो आप किसी की पॉकेट में अगर हाथ डालते हैं और वो आपको पकड़ लेता है और आपको उसकी पॉकेट में कुछ नहीं मिलता है, तो दिस इज एन अटेम्प्ट टू कमिट द थेफ्ट। अटेम्प्ट टू कमिट द थेफ्ट इज एन आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर हियर। 46 देखिए, which one of the following section of the Indian Penal Code is based on the maxim minimis non curate lex? तो जो छोटे मोटे एक्ट होते हैं, बहुत ट्रिपलिंग एक्ट होते हैं, उनका कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता है कोर्ट या जजेस के द्वारा, ऐसा सेक्शन 95 में कहा गया है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हियर, दैट इज सेक्शन 95 इज द करेक्ट आंसर। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए। Punishment regarding attempt to commit culpable homicide is contained under, तो attempt to commit culpable homicide जो है वो 308 में है। So the correct option will be C here, C correct answer होगा। Again केस से क्वेश्चन आया, which of the following case of the Supreme Court held that for an offense of extortion fear or threat must be used? extortion के ऑफेंस में fear और threat जरूर होना चाहिए मौजूद, ऐसा आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर. अंतुले केस में बोला गया है। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। 49 देखिए, ए फाइंड्स अ वैल्यूएबल रिंग नॉट नोइंग टू होम इट बिलोंग्स, ए सेल्स इट इमीडिएटली विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर द ओनर, ए हैज कमिटेड। कौन सा ऑफेंस ए ने किया है? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको, इलस्ट्रेशन आपको क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में मिल जाएगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। What is a private document? तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या है? ये डिफाइंड है सेक्शन 74 में। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्यूमेंट विच इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, मतलब डी। डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट? और डॉक्यूमेंट विच इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट इज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए, डाइंग डिक्लेरेशन, दैट इज नाउ वी आर स्टार्टिंग विद इंडियन एविडेंस एक्ट। वो भी ऊपर वाले भी क्वेश्चन इंडियन एविडेंस एक्ट के ही थे। तो अभी हमने सीआरपीसी, आईपीसी के क्वेश्चन देखे हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट के नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। नाउ विल बी हैविंग 25 क्वेश्चंस, 23 to 25 क्वेश्चंस if I am not wrong. So dying declaration से क्वेश्चन है, a dying declaration made under section 32 clause 1 of the Indian Evidence Act is relevant under which of the following provisions? तो क्रिमिनल और सिविल दोनों में ही ये रेलिवेंट होता है। So the correct answer will be both A and B. C is the correct answer. 52 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 52, which of the following section of the Indian Evidence Act 1872 is based upon the well-known principle that possession is prima facie proof of ownership? तो possession जो है वो ownership का proof है, ऐसा किस सेक्शन में कहा गया है? तो burden of proof वाला जो हमारा प्रोविजन है उसमें सेक्शन 110 जो है वो ये कहता है, ये वहां से ये डेरिवेशन आता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, Which one of the following term has not been defined under Indian Evidence Act? क्या डिफाइंड नहीं है इनमें से? कोर्ट डिफाइंड है, डॉक्यूमेंट अभी हमने देखा था सेक्शन 29 में डिफाइंड है, एविडेंस क्या होता है ये भी डिफाइंड है। सो कन्फेशन इज समथिंग व्हिच इज नॉट डिफाइंड। कन्फेशन इज डिस्कस्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट बट इट इज नॉट डिफाइंड, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हियर 53 में। 54, अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट हु हैज द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एक्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट इन अ लीगल प्रोसीडिंग? तो लीगल प्रोसीडिंग हमारा जैसे सिविल केसेस है तो उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? तो जनरली जो कंटेंट करता है, जो कहता है जिस कि भाई ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो जैसे प्लेंटिफ है तो प्लेंटिफ ने सूट फाइल की तो इट इज ऑलवेज ऑन द प्लेंटिफ द बर्डन ऑफ प्रूफ। क्रिमिनल केसेस में आप देखोगे प्रोसिक्यूशन पे है बर्डन ऑफ प्रूफ, तो यहाँ पे प्लेंटिफ इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर इन सेक्शन 54। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55 आइए, अगेन इट इज अ केस लॉ बेस्ड क्विज। Question, match the column. Navdeep Singh Johar versus Union of India, so everybody is aware about it. 377 को डिक्रिमिनलाइज किया था। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सेक्शन 309 को बात करता है अटेम्प्ट टू सुसाइड के बारे में, 309 ऑफ द आईपीसी। मिठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अगेन 303 पे क्वेश्चन है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑन 303, इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 303 ऑफ द आईपीसी। केदार नाथ वर्सेस स्टेट, ये आपका जो केस है वो सेडिशन से रिलेटेड था, 124 कैपिटल ए। सो इट इज ऑल मैच करेक्टली। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4।
Coming on to question number 56. क्वेश्चन नंबर 56 एक बार देख लीजिए अपने बैरक में, अपने सॉरी क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए. Which one of the following is not included in the expression court? इनमें से कोर्ट क्या नहीं है? तो कोर्ट comprises of all the judges, all persons legally authorized to take evidences, also comprises within the definition of court. Magistrate भी courts में include होते हैं. Arbitrators are not included in the court. So D is the correct answer. Arbitrators are not included in the court. How many witnesses are required for a proof of any fact? तो इंडियन एविडेंस एक्ट में एक किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ विटनेसेस चाहिए? तो ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा है. क्वालिटी ऑफ द विटनेस इज रिक्वायर्ड, तो नंबर नहीं दिया है. सो द आंसर विल बी नॉट स्पेसिफाइड. डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ से क्वेश्चन नंबर 57. क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं. Which of the following is not correctly matched? इसमें से करेक्टली क्या नहीं मैच्ड है? Presumption as to document which is 30 years old. सेक्शन 90 बोलता है इंडियन एविडेंस एक्ट का ये बात, तो दिस इज करेक्टली मैच्ड. बी, admissions of persons expressly referred to by the party to suit. एडमिशन की बात बिल्कुल यही की गई है सेक्शन 20 में. दिस इज ऑल्सो करेक्टली मैच्ड. रेलिवेंट फैक्ट सेक्शन 17 में नहीं है, नहीं डिस्कस किया गया. एडमिशन की बात जरूर की गई है, रेलिवेंट फैक्ट नहीं बोला गया वहां पे. ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट 45 में है. सो सी इज समथिंग विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो क्वेश्चन नंबर 58 में सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. 59 is again the question regarding the case. In which of the following case court held that confession must either be accepted as a whole or rejected as a whole? तो पूरा का पूरा एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, ऐसी बात पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोली गई है. सो ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर. क्वेश्चन नंबर 60. In which case it was held that dying declaration may be made by sign or nods is also relevant. तो साइन और नॉट के थ्रू अगर आप डाइंग डिक्लेरेशन देते हैं तब भी वो रेलेवेंट है. तो ऐसा अब्दुल्ला केस में बोला गया था. क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला इज अ लैंडमार्क केस ऑन दिस पॉइंट. इशू था उसमें ये. तो 60 का ए हुआ. 61 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं. Which section of the Indian Evidence Act makes the provision that there shall be moved trial on the ground of improper admission or rejection of the evidences? तो ये बात जो है आपकी सेक्शन 167 में बोली गई है ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी. अगेन केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है आपका. इफ देयर इज एन अपरेंट डिस्क्रिपेंसी इन टू डाइंग डिक्लेरेशन, दो डाइंग डिक्लेरेशन दिए गए हैं और वो आपस में डिस्क्रिपेंसी है उन दोनों डाइंग डिक्लेरेशंस में, तो क्या इट विल बी अनसेफ टू कन्विक्ट द एक्यूज्ड? ऐसा कोर्ट ने किस केस में कहा है? सो द करेक्ट केस इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज संजय वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2007 का जो केस है, ये इसमें इंपॉर्टेंट केस है. प्लीज एक बार आप जरूर विजिट करिएगा इसे. बाकी केसेस भी आपके कौशल राव कुसास वर्सेस स्टेट, ये भी उसी की बात करते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन की ही बात करते हैं. ये भी लैंडमार्क केसेस में से. 63 पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 63. In which case court said that evidence can be produced by way of electronic record. एविडेंस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के थ्रू लाया जा सकता है. तो इसमें लैंडमार्क केस अगर आपने सुना हो तो दैट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल पी देसाई. बहुत लैंडमार्क केस है ये 2003 का. डी विल बी द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 63. क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं. Which special provision regarding the record has been inserted under Indian Evidence Act? तो एज फार एज 2000 का इंडियन आईटी अमेंडमेंट एक्ट देखा जाए तो इंडियन एविडेंस एक्ट में बी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज 65A एंड 65 कैपिटल बी इज एडेड. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर. 65 देख लीजिए. Which of the following section of the Indian Evidence Act deals with conclusive proof? कौन से ऐसे सेक्शन है जो कंक्लूसिव प्रूफ की बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के? सो सेक्शन 41 इज टॉकिंग अबाउट इट. सेक्शन 112 regarding the paternity, conclusive proof regarding the paternity, and section 113. These are the three sections which are talking about conclusive proof. So A will be the correct answer as far as question number 65 is concerned. Coming on to question number 66. In which case court said that if there is a variance between the medical evidence and the ocular evidence, अगर medical evidence और oral evidence में variance होता है तो ocular evidence will be given प्राइमेसी. ठीक है, तो प्राइमरी एविडेंस या प्राइमेसी किसको दी जाएगी? ऑक्यूलर एविडेंस को दी जाएगी. ऐसा किस में कहा गया है? तो ऐसा इनमें से किसी केस में नहीं कहा गया है. इनमें से कोई केस नहीं ऐसा. तो डी विल बी द करेक्ट आंसर. दैट इज नन ऑफ द अबव. अगेन द क्वेश्चन विल बी ऑफ मैच द कॉलम.
प्रोफेशनल कम्युनिकेशन किस सेक्शन में बोला गया है? ऑफिशियल कम्युनिकेशन, डाइंग डिक्लेरेशन एंड रिफ्रेशिंग दी मेमोरी। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, करेक्ट। ऑफिशियल कम्युनिकेशन अंडर सेक्शन 124, इट इज आल्सो करेक्ट। डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32, refreshing the memory under section 159. So all are matched in a correct sequence. A is the correct option. So 67 में A is the correct option. 68 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68. If a witness who is unable to speak gives his evidence in writing in an open court, evidence so given shall be deemed to be. तो अगर कोई बोल नहीं पा रहा है, डम विटनेस है, तो उस केस में अगर वो राइटिंग में भी अपने एविडेंस देगा तब भी वो ओरल एविडेंस ही माने जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है जुडिशरी का, बहुत पूछा जाता है जुडिशरी में ये क्वेश्चन। लास्ट 10 इयर्स लगा लीजिएगा, आप देखिएगा आपको ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हुए मिलेंगे। तो आंसर विल बी हियर, ओरल एविडेंस ही माना जाएगा। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 69, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेस और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव। तो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें आप आंसर एक्सपेक्ट करते हैं और वो आंसर आप सजेस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे क्या कल तुम सुबह द्वारका में थे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इसे हम बोल देते हैं लीडिंग क्वेश्चन। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर, लीडिंग क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 69 का डी था लीडिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट लेज डाउन दैट द रूल दैट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस एडमिशन कैन बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग। तो एडमिशन जो है उस पर्सन के बाय और उसके बिहाफ पे प्रूफ किया जाता है, ऐसा सेक्शन 21 में कहा गया है। सो क्वेश्चन स्ट्रेट अवे फ्रॉम दी सेक्शन 21 हेडिंग से ही आ गया है। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग which section of the Indian Evidence Act empowers a judge to ask any question relevant, irrelevant to the witness or a party to the suit। तो कोई भी क्वेश्चन विटनेस या पार्टी टू द सूट से पूछा जा सकता है जजेस के द्वारा। ये पावर कहां पे है? तो सेक्शन 165 is talking about this power, 165. So B will be the correct answer. 72 देख लेते हैं, the question is whether A committed crime in Kaushambi on certain day, the fact that on that day A was at Delhi is a relevant fact. Under which section of the Indian Evidence Act? तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है plea of alibi, कि जिस दिन क्राइम को हमको पता नहीं थे, अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो plea of alibi का हमको डिफेंस मिल जाएगा, जो कि सेक्शन 11 में मेंशन्ड है। टर्मिनोलॉजी नहीं मेंशन्ड है वहां पे, डेरिवेशन है वहां पे इसका। तो सेक्शन 11 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 72। 73 में आते हैं, सेक्शन 379 ऑफ द इंडियन पीनल कोड क्या करता है? डिफाइन करता है या पनिशमेंट की बात करता है ऑफ द थेफ्ट। तो थेफ्ट की जो डेफिनेशन है 378 में है, 379 is basically the definition clause, sorry, the punishment clause as far as the offense of theft is concerned. So answer will be B here. 74 पे आइए, which of the following case the Supreme Court held that discovery of a fact with the help of a tracker dog is a scientific evidence। तो अगर कोई फैक्ट डिस्कवर होता है ट्रैकर डॉग की मदद से तो वो साइंटिफिक एविडेंस होगा, ऐसा कहा गया है अब्दुल रजाक वर्सेस स्टेट के केस में। सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर, अब्दुल रजाक वर्सेस स्टेट। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट शोज द नॉलेज इज डिक्लेयर्ड रेलिवेंट। तो कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें नॉलेज को रेलिवेंट बताया गया है? तो अगर आप सेक्शन 14 देखें तो वहां पे नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस, नॉलेज, ये सब वर्ड्स यूज किए गए हैं। सो सेक्शन 14 से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है फ्रॉम द बेयर एक्ट। तो अगर बेयर एक्ट एक बार पढ़ेंगे तो सेक्शन 14 आपको, सेक्शन 14 में आपको नॉलेज वर्ड मिल जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी हियर। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं, which one of the following fundamental right was amended as a result of the decision of the Supreme Court in the case of state of Madras versus Champaran Dorai Rajan। तो कौन सा फंडामेंटल राइट था जो अमेंड हुआ था इस केस की वजह से? तो सेकंड 76 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिस्क्रिमिनेशन, जो हमारा आर्टिकल 15 में था, दैट इज राइट टू डिस्क्रिमिनेशन जो था, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो था वो आपका हटा है, ठीक है, उसमें अमेंड हुआ है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। 77 में आ जाइए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। ऐसा किसने कहा गया है? कहा है तो लास्ट ईयर के पेपर उठाएंगे तो ये बहुत पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है सर इवॉन जेनिंग, सर इवॉर जेनिंग, ठीक है, इवॉर जेनिंग इसका करेक्ट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर।
78 पे आते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 368 इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो 368 में प्रोविजन एंड प्रोसीजर एंड पावर दे रखी है। डी इज द करेक्ट आंसर। मैच द कॉलम, कौन सा आर्टिकल किस चीज की बात करता है? सो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 इज टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, और नहीं, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 इज टॉकिंग अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, पहला पॉइंट। दूसरा, आर्टिकल 30 is talking about 30 clause 1 is talking about administration of minority educational institution. Article 16 is talking about equal opportunity in state employment and article 15 is talking about protection against discrimination. तो इसका करेक्ट सीक्वेंस जो है वो ए होगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। In which article of the Indian Constitution certificate for appeal to the Supreme Court is granted by the High Court? तो आकर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है अपील में, तो हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट ग्रांट करता है, दैट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 134 कैपिटल ए। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 में डी जो है वो करेक्ट आंसर है, मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देख लीजिए। Which one of the following articles of the Indian Constitution provides that law declared by the Supreme Court to be binding on all the courts? So the correct answer will be article 141. Article 141 is talking about this. A is the correct answer. 82 पे देख लीजिए, in which case Supreme Court held that article 14 forbids class legislation but it does not prohibits रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं प्रोहिबिट करता है, क्लास से रिलेटेड अगर आप लेजिस्लेशन बनाते हो तो जरूर उसको प्रोहिबिट करेगा। तो इस पे लैंडमार्क केस हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 82। 83 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू कंफर पावर ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स और ऑर्डर फॉर द पर्पस अदर देन एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए जैसे रिट्स की बात है तो आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 इज दी होलसेल आर्टिकल, बट पार्लियामेंट के पास पावर है टू ऑर्डर द इशू ऑफ रिट, दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 139 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। 84 देख लेते हैं। ए बीइंग Z servant and entrusted by Z with the care of Z's plate dishonestly run away with the plate without Z's consent, A has committed offense of। तो देखिए अब इसमें एंट्रस्टमेंट वर्ड यूज हुआ है तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगता है ऐसा, बट जो इसका करेक्ट आंसर है वो थेफ्ट है। थेफ्ट के आप इलस्ट्रेशन में जाएंगे, आपको स्ट्रेट अवे ये इलस्ट्रेशन मिल जाएगा। सो एज फार एज क्वेश्चन नंबर 84 इज कंसर्न, थेफ्ट इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। 85 देखते हैं। Which of the following article cannot be amended without rectification by the state legislature? Article 54 regarding the president. Without the rectification, it cannot be amended. Article 54. B is the correct answer. 86 पे आइए। The Supreme Court in the case of state of Punjab versus Davinder Singh has given the following propositions, among them which are correct. तो देखिए रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड ये भाई हमारा रिसेंट 2025 का केस है, तो ये 2024 का केस है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स है? रीलुक एंड इवॉल्वमेंट ऑफ अदर मेथड्स ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी की बात की गई थी, पीरियोडिक रिव्यू की बात की गई थी, जिनको आप रिजर्वेशन देते हैं, हु आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द रिजर्वेशन या जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसके अलावा लिमिटेशन और रिजर्वेशन की भी बात की गई थी फ्यूचर जनरेशन के रिगार्डिंग। सो ये तीनों ही पॉइंट्स इस केस में थे। So all of the above will be the correct answer. D is the correct answer. 87 पे आ जाइए। The reservation of scheduled caste and scheduled tribes in promotion in government jobs have been secured by which of the following amendment? So the correct amendment will be 77th amendment of the Constitution, जो कि 1995 में हुआ था। 88 में आइए। What majority is required to pass a bill brought in the joint session of both the houses of the parliament? तो कोई joint sitting में बिल अगर पास करना है पार्लियामेंट में तो कितनी मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। सो A will be the correct answer. Question number 88, A will be the correct answer. Question number 89, in which landmark case Supreme Court declared that electoral bond scheme is unconstitutional? देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड हमारा लैंडमार्क केस आया है और उनको उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, तो ये बहुत रेलिवेंट केस है और बहुत पूछने योग्य केस था जो इन्होंने पूछा है। सो द केस विल बी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये हाल ही का 2024 का केस है, तो इसको प्लीज देख लेंगे, बाकी एग्जाम्स में भी आने की प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग
best describes the Supreme Court interpretation of Article 19(1)(a) in relation to the right to information. Best क्या बताएगा as far as Article 19(1)(a) is concerned? So the correct answer is it guarantees the right to information for all the citizens. देखिए A में क्या लिखा है? It guarantees right to information only to citizen of India or for all citizens. मतलब they are almost similar options. हमें करेक्ट ऑप्शन जो बेयर एक्ट में दिया है, जो इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा है वो देना है. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हियर एज फार एज इंटरप्रिटेशन इज कंसर्न. क्वेश्चन नंबर 91, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इज सेंट्रल टू द डिबेट ऑन एससी सब क्लासिफिकेशन? शेड्यूल कास्ट सब क्लासिफिकेशन को लेके कौन सा आर्टिकल रेलिवेंट है? सो द करेक्ट आंसर विल बी आर्टिकल 341. दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर. सी. Question number 92. According to Article 74(2) of the Constitution, which of the following statement related to the question of the advice by the Minister to the President of India would be correct? तो अगर कोई भी एडवाइस देते हैं तो वो डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए. सो द करेक्ट आंसर विल बी द एडवाइस कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी ऑफ द कोर्ट्स. जो भी एडवाइस दिया है उस पर क्वेश्चन नहीं उठाए जा सकते हैं. ऐसा 74 आर्टिकल 74 सब क्लॉज 2 में दिया है. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हियर ऑफ क्वेश्चन नंबर 92. 93 देख लेते हैं. In which case Supreme Court held that right to education should be extended to the quality education without discrimination on the ground of economic, social and cultural background. तो right to education को लेके देखिए सारे हमारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं यहाँ पे, बट स्टिल ये क्वेश्चन जिस केस में उठाया गया था वो था हमारा स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस श्याम सुंदर. इज अ केस जहां पे ये क्वेश्चन उठाया गया था. ये 2011 का केस है. तो ये केस देखा जा सकता है. 94 पे आते हैं. In which case the Supreme Court struck down the constitutional Article 99th Amendment Act for the appointment of judges. तो ये बहुत relevant केस है और ये हमेशा पूछा जाता है, बहुत बार आया है जुडिशरी में. So it will be the Supreme Court Advocate on Record Association versus Union of India. The correct answer is A. इस केस में 99th Constitutional Amendment को struck down किया गया था इस केस के थ्रू. So A is the correct answer of question number 94. 95 देख लेते हैं. Which of the following case the Supreme Court has held that secularism has a positive meaning that is developing understanding and respect towards different religion? ऐसी बात किस में कही गई थी? देखिए केसेस जो है वो सेकुलरिज्म से रिलेटेड है, बट ऐसा किस केस में कहा गया था? सो दैट इज अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, which is the case where it was held by the stated by the Supreme Court. So the correct answer will be B. Question number 96. Which Supreme Court judgment did the recent ruling on शेड्यूल कास्ट सब क्लासिफिकेशन ओवरटर्न? तो अभी शेड्यूल कास्ट सब क्लासिफिकेशन पे हमारे पास केस आया था. अब ये पूछ रहे हैं कि ओवरटर्न किस रूल को किया, किस जजमेंट को ओवरटर्न करके वो रूल आया. सो द करेक्ट आंसर विल बी ईवी चिन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर. सी इज द करेक्ट आंसर. सो एज फार एज सब क्लासिफिकेशन वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसी के रिगार्डिंग ये हमारा नेक्स्ट आंसर है. आगे बढ़ते हैं. 97th क्वेश्चन देख लेते हैं. अगेन इट इज द मैच द कॉलम क्वेश्चन. रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज बेसिकली रिगार्डिंग द इक्वल पेपर इक्वल वर्क. अशोक रूपा वर्सेस अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा is basically regarding the curative petition. Re-Kerala Education Bill was basically regarding the harmonious construction doctrine, and SR Bommai was the one of these was regarding the judicial review. So all are correctly matched. A is the correct answer here. Question number 98 देख लेते हैं. In which case Supreme Court held that civil judges are not eligible to seek direct recruitment to the post of district judge in bar quota. ऐसा किस केस में कहा गया था? तो ये केस हुआ है, इंपॉर्टेंट केस था. ये हमारा है धीरज मोर वर्सेस ऑनरेबल हाई कोर्ट का केस था. तो ए इज द करेक्ट आंसर हियर. लास्ट 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं. By the Constitution 103rd Amendment Act, which of the following clause was added to the Article 16 of the Constitution? तो Article 16 में कौन सा clause add हुआ था? So it is the 6th clause which was added. So Article 16 में 6th clause add हुआ था. So it will be the C correct answer. C जो है इसका सही आंसर होगा. Last question of the law portion. Who has the right to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court in India? Supreme Court का jurisdiction enlarge करने की किसके पास पावर है? So the correct answer will be Parliament here. आप section Article 138 देख सकते हैं, which is talking about this concept only.
So this is the probable answer of the questions of Jharkhand APO. I hope it is helpful for you. Subscribe for more content.